Welcome to the Hindu Lit for Life 2017. We begin the afternoon's session with a conversation that is sure to give us food for thought. Is India ripe for a revolution? Let's find out from the outspoken and courageous Kanhaiya Kumar's conversation with Sadanand Menon. Over to you. Good afternoon, and along with you, I too am looking forward to this conversation with one of our most iconic names in India today, Kanhaiya Kumar. And I think it's a tribute to what this young man represents to many in this nation, this very disturbed nation, that such an extraordinary turnout has come today to hear what he has to say. It's not often that young political leaders in India or political thinkers or even young activists get this kind of attention. And Kanhaiya has gone through a huge amount of turbulence over the last 1 year. And of course, it's common knowledge, all that happened to him in the Jawaharlal Nehru University and the kind of extraordinary harassment that he was treated to and the kind of trumped up charges of sedition and so on that were laid at his door and the allegations of anti-nationalism and all these things that are part and parcel of a certain, what one would call a soft democracy today, which is able to treat its citizens, particularly its young citizens, who want to ask questions, who want to make a difference, who want to have a change, but the political system bullies them into behaving in particular manners and wanting them to fall in line. And it's quite fantastic that this young man has been able to withstand that. And we all, I think almost everybody in this room must have heard the fantastic naras that he gave in JNU. And I would request Kanhaiya to open this session with one nara. Yes, thank you. First of all, I'm very apologetic that always I speak in Hindi, but I know your language is not Hindi. Most of the people speak Tamil, and I don't know Tamil. And I am not Sanghi that I will not impose Hindi on you. And this is the beauty of our nation, that we have so many language, so many culture, and diversity is our strength. But being a human, it is my limitation. I cannot learn all the languages of this country. So you can ask question in English, I will respond in English. But there are few things I want to share with you in Hindi, because my mother tongue is Hindi and I am not very much comfortable with colonial language. तो एक नारे से शुरू जी जरूर. रोजी रोटी के लिए तो अंग्रेजी बोलना ज़रूरी होता है. बहुत सारे लोग नहीं समझेंगे हिंदी, तो हिंदी फिल्म का गाना समझ करके सुन लीजिएगा. जैसे हम लोग बहुत सारा तमिल गाना सुनते हैं, समझ में नहीं आता है, सिर्फ म्यूजिक पे डांस करते हैं. सर कह रहे थे कि नारा लगा दीजिए. मैं सोच रहा हूँ कि आजकल नेशनल और एंटी नेशनल का को फ़र्क करना बड़ा मुश्किल हो गया है. मैं नारा लगाऊं इस देश के पक्ष में और पता चले कि जो तथाकथित देशभक्त हैं वो उसको देश के विपक्ष में साबित कर दें. एक नारा लेकिन वो लोग भी एंटी नेशनल साबित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आजकल वो लोग एप्रोप्रिएशन का पॉलिटिक्स कर रहे हैं. पहले कोशिश कर रहे थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को एप्रोप्रिएट करने का, आजकल गांधी को एप्रोप्रिएट करने पे लगे हुए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, they have reduced Mahatma Gandhi
फ्रॉम हिज आइडियाज टू हिज चश्मा, और अब जो है गांधी जी को पूरा गायब कर दिया है। मोदी जी सूत काट रहे हैं। मुझे लगा कि मोदी जी सूत क्यों काट रहे हैं, तो फिर पता चला कि RSS has decided that they will wear full pant. So maybe हो सकता है कि उन्होंने ठेका ले लिया हो और कहा हो कि सारा पेंट हम ही सिल देंगे, क्योंकि व्हाट इज द आइडिया ऑफ गांधीज़म? गांधी जी तो खुद के लिए कपड़ा सिलते थे, अब मोदी जी तो 5 लाख का सूट पहनते हैं, वो चरखे पे सिला नहीं जा सकता है। एनीवे, तो भगत सिंह को अपनाया, शिवाजी को एप्रोप्रिएट किया, गांधी जी को एप्रोप्रिएट कर लिए हैं। तो कभी कभी मन करता है पूछें किसी RSS वाले को, अब तेरा क्या होगा गोडसे? खैर, तो अब उनका जो टारगेट है वो अब धीरे धीरे क्रांतिकारी भी होने वाले हैं। आफ्टर द इंसिडेंट ऑफ demonetization, one of the BJP leaders said, we are trying to implement the idea of Marx. So maybe they can say that Bhagat Singh is our ideal. तो हम सोच रहे हैं कि भगत सिंह वाला नारा ही जोर जोर से लगाएं ताकि वो उसको एंटी नेशनल नहीं साबित कर पाए। तो हमारे साथ आप लोग कहिए, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। It means revolution long live. And I want to come to my topic. The topic is कि इस देश में जो है रेवोल्यूशन, नो आई एम कंफर्टेबल, अच्छा, थैंक यू। रेवोल्यूशन जो है वो पक के तैयार हुआ है कि नहीं हुआ है? वी आर स्ट्रगलिंग फॉर द डेमोक्रेसी। आई डोंट नो what kind of revolution we are waiting. So it is very difficult question. I think sir will initiate the discussion and I will try to answer, and I will respond your questions also. या आई थिंक कन्हैया कुमार जी, आप चेन्नई में मेरे ख्याल से कुछ 30 साल लेट आए हैं। यू आर अबाउट 30 years लेट, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी हैड अ रेवोल्यूशन हियर एंड वी हैव हैड 2 revolutionary leaders, पुरच्चित तलाइवर एंड पुरच्चित तलाइवी। So our revolution is over. You have to tell us what revolution we will do. But jokes apart, I think the question is, the proposition that has been made is India ripe for a revolution? It's an interesting term. Revolution is an interesting term because, as you know, and as everybody knows, the term revolution has been appropriated by all kinds of agencies, and even those existed from Greek times. Even Aristotle talked about revolution and so on. And in political theory, it's taught 2 kinds of revolution, a total revolution and a partial revolution and so on. But today, you also know that there is a green revolution, there is a white revolution, there is a digital revolution. Everything is a revolution. And in this noise of revolution, where would, let's say, the younger community in a nation like India, which probably has developed a certain distaste for this word, also in the face of the fact that the left movement in India seems to be in the retreat, and it's even being talked of as a failed revolution and so on. Where would the inspiration for that kind of transformative change come to the young? Where will you draw that inspiration from? कहाँ से वो ऊर्जा कहाँ से आएगी? वो उसका जो कल्पना है वो कहाँ से आएगी? First of all, I think there is no specific day when the revolution will come, because revolution is ongoing process. अब ऐसा नहीं होगा कि कोई ऐसा दिन आएगा, तारीख निकाली जाएगी और उस दिन क्रांति होगी, रेवोल्यूशन होगा। एवरी डे जो चेंज हो रहे हैं सोसाइटी के अंदर, उस चेंज के चलते हम समाज में अलग अलग, उस सोसाइटी के अलग अलग स्फीयर में हम रेवोल्यूशन को देख सकते हैं। मसलन जिस समय इंडस्ट्रियल एज था, उस इंडस्ट्रियल एज में जो प्रोडक्शन सिस्टम था, उसके बेसिस पे जो सोसाइटी कंस्ट्रक्ट हुई, उसके जो नॉर्म्स और प्रोसीजर डिसाइड हुए,
आज वो कहीं ना कहीं बदला है। और हम लोग जो है इंडस्ट्रियल सोसाइटी के फेज से पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी के फेज में जा रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि फ्यूडल टेंडेंसीज ख़त्म हो गए हैं, देयर आर फ्यूडल टेंडेंसीज। लेकिन आप देखिए कि न्यू मीडिया, आई वांट टू जस्ट प्रोड्यूस सम एग्जांपल्स, कि कुछ लोग अगर मिलिट्री के ऊपर कोई सवाल खड़ा करते हैं, सिविलियंस, तो उसको तुरंत एंटी नेशनल पोर्ट्रे किया जाता है। और मिलिट्री के अंदर जो प्रॉब्लम थे उसको कभी भी बाहर निकाल पाना, पब्लिक डिस्कोर्स में ला पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन अभी सर तेज प्रताप यादव जी ने, दे हैव अपलोडेड ए वीडियो, उसके बाद से जो है एक नए तरीके का ए न्यू काइंड ऑफ डिस्कोर्स जो है वो शुरू हुआ। और ये जो मीडिया है, न्यू मीडिया, ये न्यू मीडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है यंग जनरेशन के कॉन्शियसनेस में रेवोल्यूशनरी आइडिया को डेवलप करने में, उसके ऊपर इसका ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ने वाला है। आप देखिए कि इट वाज क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर द फादर और द गार्जियंस टू ट्रांसफॉर्म द पॉलिटिकल आइडियाज़, कि वो अपना जो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है वो अपने बेटे में कैसे ट्रांसफ़र करें। बड़े लोग वोटिंग के लिए जाते थे, लड़का वोट के लिए नहीं जाता था। आज आप देखेंगे यंगर जनरेशन जो फर्स्ट टाइम वोटर होता है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है वोट करने का। और वो वोट करेगा, उंगली में स्याही लगी हुई, एक फ़ोटो खींचेगा सेल्फी, फिर उसको जो है सोशल मीडिया पे अपलोड करेगा, आई वोटेड फॉर कंट्री। तो ये जो यंग जनरेशन है, चूँकि उसके पास एक आइडियोलॉजिकल, आई एम वेरी मच एग्री विथ योर पॉइंट, कि एक जो आइडियोलॉजिकल डिस्कोर्स होता था सोसाइटी के अंदर, दैट इज़ मिसिंग, दैट इज़ नो आइडियोलॉजिकल डिस्कोर्स। तो वो एक आइडियोलॉजिकल लैकिंग जो है आपको यूथ में मिलेगा। लेकिन उसके पास आज कनेक्टिविटी है, उसके पास एक्सेस है, उसके पास इंफॉर्मेशन है, तो धीरे धीरे जो है उसके अंदर आइडियोलॉजिकल शेप भी आ जाएगा। प्रॉब्लम ये होता था कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में किसी भी एथिक्स को ट्रांसफ़र करना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन इस नए मीडिया ने यूथ को बहुत ज़्यादा कनेक्टेड किया है एक दूसरे से। आप देखिए कि अभी हम लोग, मतलब आपने कहा रेवोल्यूशन, एक तरीके का डिस्कनेक्ट था उस दौरान। और यहाँ जो रैशनल मूवमेंट हुआ, जो पेरियार का मूवमेंट था, उसका इम्पैक्ट बिहार और उत्तर प्रदेश पे कम पड़ा। बिहार और उत्तर प्रदेश में जो मूवमेंट हुए उसका इम्पैक्ट जो है यहाँ पे कम पड़ा। लेकिन आज अगर कुछ होता है, अब जब पेरुमल का के ऊपर बैन लगा, तो हम लोग दिल्ली में जो है तमिलनाडु भवन के सामने जाकर के प्रोटेस्ट किए कि ऑथर्स के ऊपर आप बैन नहीं लगा सकते हैं। तो सोसाइटी जो है वो एक तरीके से कनेक्ट हो रही है। अभी एक दुखद घटना पटना के अंदर हुई, एक जो है बोट ट्रेजेडी हुई, कुछ लोग मर गए, और आप लोग सब जानते हैं कैसा हुआ है। तो सोसाइटी ज़्यादा कनेक्टेड हुई है। और उसमें क्या है कि हर एक इंडिविजुअल ने डेमोक्रेसी के अंदर अपना स्टेक ढूंढना शुरू किया है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उनके अंदर एक होड़ है कि ये जो फर्स्ट टाइम वोटर है उनको, उनके मेंटालिटी को कैसे कैप्चर किया जाए, किस तरीके से। और यूरोप के अंदर अभी एक बहुत सीरियस डिस्कोर्स चल रहा है, वी आर टॉकिंग अबाउट डिजिटल डेमोक्रेसी। लेकिन इंडिया का डिजिटल डेमोक्रेसी का प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे फेक वीडियोज़, एडिटेड फोटोज़, ये जो प्रॉब्लम है, इसकी वजह से हम जो वो न्यू मीडिया है उससे सोसाइटी के लिए पॉजिटिव कम, निगेटिव ज़्यादा निकाल पा रहे हैं। तो यही प्रश्न है कि तो ये जो आइडियोलॉजिकल डिजिटल मीडिया इज अ मैनिपुलेटिव मीडिया, it can be manipulated by all kinds of powers, and it is being misused more rather than for social connectivities, for actually creating a communal flavor, creating disconnectivity, creating anger, creating violence. No, this is the problem. This is the problem. But I am talking about the strength of new media. अब आप ये देखिए कि ट्विटर पे जो ट्रेंड करेगा वो हेडलाइन बनेगा। पहले मैं जब सोशल मीडिया यूज करना शुरू किया था तो जो हेडलाइन होता था उसको शेयर करके हम लोग
पोस्ट करते थे। अब हम जो पोस्ट करते हैं उसको जो है मेन स्ट्रीम मीडिया हेडलाइन बनाती है। तो ये शिफ्ट हो रहा है, ये बदलाव आ रहा है। मिसिंग क्या है? व्हाट इज मिसिंग? मिसिंग है आइडियोलॉजिकल कंटेंट का, आइडियोलॉजिकल डिस्कोर्स का। जो लोग मोदी मोदी कर रहे हैं, दे डोंट नो द आइडियोलॉजी ऑफ मोदी, दिस इज द फैक्ट। अगर उनको पता चलेगा कि मोदी कहाँ खड़े होते हैं, आई एम टेलिंग यू, आई हैव फुल फेथ on the strength of our diversity. No one can impose oneness. No one can impose. It is quite difficult in India. You can analyze very properly कि मैं बिहार से चल करके यहाँ आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूँ और हमारा और आपका खान पान तो बहुत ही अलग हो जाएगा, लेकिन ये जो डाइवर्सिटी है फिर भी एज ए नेशन हम यूनाइटेड हुए। यूनाइटेड होना एक बात है और वननेस को किसी के ऊपर थूपना ये बिल्कुल दूसरी बात है। यूनाइटेड हम हो सकते हैं, एक गांव में ही अलग अलग तरह से लोग रहने वाले होते हैं, लेकिन वो एक गांव के मेंबर होते हैं, ये एक फ़र्क होता है। ये आइडियोलॉजिकल कंटेंट मिसिंग है। ये आइडियोलॉजिकल कंटेंट अगर हम इस ऑन गोइंग रेवोल्यूशनरी प्रोसेस में डाल पाते हैं, दैट इज द टास्क ऑन आवर शोल्डर्स। एज ए मेंबर ऑफ सिविल सोसाइटी हम क्या मिस करते हैं कि हम सब लोग अपने अपने केज में हैं। वी हैव टू कम आउट फ्रॉम आवर ओन केज। हमको बाहर निकलना पड़ेगा कि जो एक तरीके का मिसकंसेप्शन न्यू मीडिया के थ्रू डॉक्टर्ड वीडियो, फेक फोटोज के द्वारा फैलाया गया है, उसके ऊपर हर एक कम्युनिटी को, आई एम टॉकिंग अबाउट कि कम्युनिटी प्रोफेशन वाइज भी और कम्युनिटी आपके जो है कास्ट और रिलीजन वाइज भी, सबको अपनी कम्युनिटी से बाहर आकर के सच जो है लोगों के सामने रखना पड़ेगा। तभी न्यू मीडिया का एक सही असर यूथ के माइंड पे दिखता हुआ हम लोग जो है उसको एनालाइज कर सकते हैं, वो दिखेगा और उससे जो है समाज एक बेटर कंडीशन में ट्रांसफॉर्म कर पाएगा। बट यू आर टॉकिंग अबाउट एन आइडियल कंडीशन। जब कहते हैं कि सबको ऐसा करना पड़ेगा, प्रश्न ये उठता है कि क्यों नहीं रहे हैं? नहीं, वो क्या बाधा है जो ये हो नहीं पा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा जब मैं कहता हूँ कि करना पड़ेगा मतलब और करना पड़ेगा, वी हैव टू डू मोर। वी आर डूइंग, दैट इज नॉट इनफ, वी हैव टू डू मोर। आई एम गिविंग यू सम एग्जाम्पल्स। जस्ट आई बिकेम द प्रेसिडेंट इन 2015. The first movement was in JNU for the support of FTII. They have made a new chairman. His name is Gajendra Chauhan, and he was very big fan of Modi ji. So this is the quality of him, and he became the chairperson of FTII. So there was a movement against that person. He is Yudhishthir. Then they have, no, I don't know, maybe Arjun. So after that, one incident took place in Tamil Nadu. They have banned Ambedkar Periyar Study Circle in IIT Chennai. That was the second incident. The third incident, there was a mob lynching of Akhlaq in Uttar Pradesh. So these all movement were happened, और we supported all the movement जिसका रूट जो है वो दिल्ली नहीं था, JNU नहीं था, मतलब वो दूसरी जगह था. Then government imposed a policy that they will discontinue the fellowship. Then the new movement started in Delhi. That name was Occupy UGC movement. And during the Occupy UGC movement, the incident of Rohit Vemula happened in Hyderabad Central University. तो आप ये देखिए कि डिफरेंट जगह पे मूवमेंट हो रहे हैं, लोग उसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं और सड़कों पे उतर रहे हैं. JNU का नंबर तो बहुत बाद में आया है, JNU का नंबर बहुत बाद में आया है, उससे पहले ये अलग अलग जगह पे ट्राई कर चुके थे. लेकिन JNU आने से क्या हुआ? कैपिटल सिटी होने का फ़ायदा ये हुआ कि मीडिया अटेंशन मिला, मीडिया ने जो है उसको कवर किया, और कवर करने से वो सोच रहे थे कि ये सरकार के पक्ष में जा रहा है, लेकिन वो नहीं समझे कि जब आप कोई नैरेटिव एस्टेब्लिश करना चाहते हैं सोसाइटी के अंदर, तो एक काउंटर नैरेटिव भी अपने आप तैयार होता है. और वो काउंटर नैरेटिव ये था कि जब लोग मोदी जी के लिए आह वाह कर रहे थे, उस आह वाह के बीच में जो है कि लोग ये भी बोलना शुरू किए कि ये आदमी बहुत बड़ा झूठा है, ये कुछ नहीं कर रहा है. तो ये जो एक निकला है, उसका आप असर देखिए, उसका आप असर ये देखिए कि गांव गांव में लोगों के पास
आज अगर वो गलत तरीके से जेएनयू को पहुंचा दिए हैं, तो जो काउंटर नैरेटिव से इम्प्रेस्ड लोग हैं वो जेएनयू के सही तरीके से भी जो है कनेक्शन उनका एस्टेब्लिश हो चुका है। तो ये साइमल्टेनियसली चल रहा है। मेरे ख्याल से आप थोड़ा इसको रोमांटिसाइज कर रहे हैं। ये जो काउंटर नैरेटिव जो बोल रहे हैं वो इतना व्यापक भी नहीं, इतना फैला भी नहीं है कि हर एक यूनिवर्सिटी में कुछ अपराइजिंग हो रहा है, कुछ इंसरेक्शन, वो तो नहीं है। मेरे ख्याल से इतिहास में जाने की थोड़ी जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, आई बिलोंग टू द 60s जनरेशन. It's a particular term. 60s generations are people who went to the universities in the late 60s, and the very famous May 68 uprising that happened in Paris, which spread slowly all over the world, including in India. Every university, every college was affected by it. At least in the Western countries, students were able to mobilize and stop the Vietnam War and all the other kind of major aggressions that are going on around the world. In India, it took the form of a very, very important agitation against for university reforms in education, leading to Navnirman, leading to Chhatra Yuva Sangharsh Vagini, leading to Jayaprakash Narayan picking up the Marxist slogan of Sampurna Kranti, permanent revolution, total revolution, etc. So it had despite there being no social media agencies were very poor at that time, yet in the flash of a minute, news was spreading, students were getting excited. At every university, in every college, there were agitations for change, which transformed the consciousness of these students who were part of that. Someone like me, for example, who was very much part of it. And even today, a certain sense of values, a certain political perception, a certain moral perception comes from that. And the knowledge that we were at that time able to bring about some change, which was not just in our context, but all over the world. We were speaking up against, let's say, apartheid in South Africa, against the dictatorships in Latin America, what was happening in Nicaragua, and so on. So there was a huge global international impact there. Here, despite the social media's apparent connectivity, it's atomizing students even now. So even despite all that you're saying, जब इलेक्शन आते हैं तो वही मोदी जी जीतते हैं। तो वो क्यों ऐसा हो रहा है? वो उसमें क्या वो फिसल, स्लिपेज, कुछ फिसल रहा है, वो क्या फिसल रहा है, वही मैं समझना चाहता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारी उम्र है रोमांटिसाइज होने की। एंड रेवोल्यूशन इटसेल्फ इट इज अ वेरी रोमांटिसाइजिंग आइडिया। तो ये तो खैर मुझे मेरा ये डेमोक्रेटिक राइट मेरे पास रहने दीजिए। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव रियलिटी भी है। वो मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि आप जब फाइट कर रहे थे तो आपके पास एक, मतलब मैं आपको कम नहीं कर रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, आपके समय में डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हुई, आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट एस्टेब्लिश हुआ, ठीक है, प्लुरलिज्म को जो है कोई अटैक नहीं था, उसमें जो है मल्टी पॉलिटिकल पार्टी जो है इंडिया के अंदर थी, और जो हेजेमनी था, आपके समय में भी एक हेजेमनी था, उस हेजेमनी के खिलाफ यूनिवर्सिटी जो है उठ करके खड़ा हुआ। हम कहते हैं कि हमारे समय में वेलफेयर स्टेट के आइडिया को पूरे तरीके से गिव अप कर दिया गया है। वेलफेयर स्टेट कुछ नहीं है, पूरा मार्केट बेस्ड इकोनॉमी है। This is not the responsibility of government to give the education, health facilities, nothing. जिसके पास पैसा है वो ओन करेगा, जिसके पास नहीं है वो फैसिलिटी एक्सेस नहीं कर सकता है। एक चीज़। दूसरी बात, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, नॉट इन इंडिया, एवरीवेयर। आप देख लीजिए, इन USA देयर इज ह्यूज लिबर्टी, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, एंड ट्रम्प इज द प्रेसिडेंट ऑफ USA। तो माने आप देखिए क्या सिचुएशन है दुनिया के अंदर। एंड क्लियरली ही इज सेइंग दैट ही इज एंटी वीमेन, ही इज एंटी माइनॉरिटी, ही इज एंटी ब्लैक, ही इज एंटी मैक्सिकन, और वो जो है वहाँ का प्रेसिडेंट बन जाता है। और किसके यहाँ पे, जो सबसे स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी होने का दावा करता है, जिसके पास स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी है, जो प्लुरलिटी की बात करता है, जो न्यू लिबरलिज्म कहता है कि वर्ल्ड विल बी लाइक ए विलेज, मतलब एवरीवेयर द प्रोडक्ट कैन गो हेयर एंड देयर, द कैपिटल कैन गो हेयर एंड देयर, देयर विल बी नो बाउंड्री। इसको जो है पोर्ट्रे किया गया मार्गरेट थैचर और पता नहीं कौन कौन, रीगन, सब लोग।
वहां पे आज कहा जा रहा है कि देयर विल बी ए स्ट्रॉन्ग इमिग्रेशन पॉलिसी। तो आपके समय और हमारे समय में क्या है कि रेवोल्यूशन तो छोड़ दीजिए, यहां तो हम लोग डेमोक्रेसी बचाने की फाइट कर रहे हैं। सही बात। आप जो है, आप कैपिटलिस्ट स्टेट को छोड़ दीजिए, मतलब हम तो कह रहे हैं कि भाई कैपिटलिस्ट ही स्टेट को रहने दो, ये तो फ्यूडल स्टेट दोबारा से लाना चाहते हैं। दे आर ट्राइंग टू एस्टेब्लिश ए फ्यूडल स्टेट। माने आपके समय में कैपिटलिस्ट स्टेट था और आप जो है सोशलिस्ट स्टेट की मांग कर रहे थे, कंप्लीट रेवोल्यूशन, सोशलिस्ट आइडिया, जेपी, डेमोक्रेसी, पार्टीलेस डेमोक्रेसी, मतलब स्टेटलेस सोसाइटी, ये सब हो रहा था। हम तो कह रहे हैं कि भाई मल्टी पार्टी सिस्टम रहने दो, इलेक्शन रहने दो, देयर इज नो अपोजिशन। सो दो अलग अलग समय का अलग अलग प्रॉब्लम है। ऐसे सिचुएशन में जब हम पूरी तरह से आइडियोलॉजिकली वैक्यूम है हमारे दिमाग में, हम जानते ही नहीं हैं डेमोक्रेसी क्या है। आई एम टेलिंग यू द सम ट्रूथ, वी डोंट नो। आप नॉर्थ इंडिया में स्थिति ये है कि साउथ इंडियन विच इज द, एक तरफ आप कह रहे हैं यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ दिस नेशन, और आपके ही सामने में दिल्ली में, कैपिटल सिटी में, तमाम साउथ इंडियन को मद्रासी कहा जाता है। दिस इज द रेशियल, हाईली रेशियल कमेंट। जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, और वही बेशरम लोग हैं जो मोदी मोदी करते हैं, shameless people, those now they are claiming themselves as a nationalist, Bharat Mata ki jai. They abuse to northeast women as a chinky. This is the reality कि आप जो है इस देश की जो प्लूरलिटी है, यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग देम। इस सिचुएशन में हम लोग आ गए हैं, लोगों को पता ही नहीं है। इफ आई विल से एनीथिंग अगेंस्ट द रिलीजन, दे विल दे विल पोर्ट्रे मी एज ए एंटी हिंदू, and there is a big statue of Periyar, and what they are saying, what Periyar is saying, there is no God, there is no God. Periyar खुद लिखा हुआ है उनके स्टेचू के नीचे में। तो कहाँ से हम कहाँ पहुँच गए हैं? We are in a very difficult time कि रेवोल्यूशन तो छोड़ दीजिए, डेमोक्रेसी बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और जो ऑपोजिशन का प्रॉब्लम है कि आप कह रहे हैं स्टूडेंट तो लड़ रहे हैं, वी आर फाइटिंग, वी आर कमिंग ऑन द स्ट्रीट, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हु विल रिप्लेस द नरेंद्र मोदी, हु विल रिप्लेस? आप देख लीजिए कि एक एक करके हाउ दे आर अप्रोप्रिएटिंग द ग्रेट पर्सनालिटी, दे आर नॉट अप्रोप्रिएटिंग आइडियोलॉजी, दे आर इम्पोजिंग आइडियोलॉजी। मतलब ये कर रहे हैं कि गांधी जी का जो सफेद धोती है ना, उसको उतार करके उसको भगवा धोती पहना देंगे गांधी जी को। गांधी जी के आइडिया से कोई लेना देना नहीं है। दे विल यूज सैफरन धोती फॉर महात्मा गांधी। ठीक है, ये रियलिटी बना दिया है। और उसमें आप देखिए कि जब चुनाव आएगा, जब चुनाव का टाइम आता है, जब यूथ वोट करने के लिए जाएगा, वो किन सवाल पे वोट करेगा? यूथ, मैं आपको बता रहा हूं, दे आर नॉट रेडी टू वोट ऑन द नेम ऑफ टेम्पल। दे वोटेड मोदी फॉर द एम्प्लॉयमेंट, दे वोटेड मोदी फॉर द डेवलपमेंट, एंड वी हैव टू एनालाइज प्रॉपरली। मोदी हैज चेंज द कलर ऑफ लोटस। उनका जो कमल का चिन्ह था उसको सेफ्रॉन से उन्होंने व्हाइट कर लिया। जो उनका आइडियोलॉजिकल रिजिडनेस था दिखाने के लिए, हिंदी में हम लोग कहते हैं हाथी का दांत दिखाने का कुछ और, खाने का कुछ और है। तो दिखाने के लिए वो अपने आप को लिबरल बताने लगे, लिबरल बताने लगे। दे हैव प्रोमिस्ड दैट दे विल क्रिएट 2 करोड़ जॉब पर ईयर। तो जो लड़का कॉल सेंटर में काम करता है उसको लगेगा कि डेवलपमेंट होगा, 15 लाख रुपीज विल कम इन माई अकाउंट, ठीक है ना। तो वो इस जो है सब्ज बाग में उसने वोट दे दिया। दूसरी तरफ जो लोग थे जिनके ऊपर मिसरूल का आरोप लगता है, दे हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। दे वेयर द कंस्ट्रक्टर ऑफ वेलफेयर स्टेट, एंड वही लोग जिनको वेलफेयर स्टेट बनाना था, वही लोग जो है न्यू लिबरलिज्म को ला करके वेलफेयर स्टेट को डिस्ट्रॉय कर दिए। और जब आज वेलफेयर स्टेट डिस्ट्रॉय हो गया है, पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूट को बंद कर दिया गया है, तब आपको उसके जो ICHR का हेड होगा, जो हिस्ट्री काउंसिल का हेड होगा, जो FTII का हेड होगा, जो JNU का वाइस चांसलर होगा, सबको वहां से हटा करके अपना आदमी बिठा दिया है, और सारे कैंपसेस के अंदर जो है एक आइडियोलॉजिकल वॉर छिड़ गया है। अब मैं ये कह रहा हूं कि कहीं सही, मतलब कम ही सही, लेकिन शोर होना तो शुरू हुआ है। यूनिवर्सिटी कैंपसेस के अंदर जो आइडियोलॉजिकल वॉर छिड़े हैं, उसका असर ये हो रहा है कि न्यू मीडिया के तहत वो निकल करके बाहर पहुंच रहा है। अब आप बताइए कि अगर ये सरकार के खिलाफ हम लोग नहीं लड़ते तो ये सरकार हम लोगों को गिरफ्तार नहीं करती।
अगर गिरफ्तार नहीं करती तो मीडिया हमको कवर करने के लिए नहीं आती, और मीडिया कवर करने के लिए नहीं आती तो हमारा भाषण जो है वो गांव-गांव में नहीं पहुंचता, और गांव-गांव में नहीं पहुंचता तो जय भीम और लाल सलाम का नारा लोगों तक नहीं पहुंचता। और उसमें जो हम कह रहे हैं कि देयर मस्ट बी ए आइडियोलॉजिकल यूनिटी अगेंस्ट द आइडिया ऑफ वननेस, देयर मस्ट बी ए यूनिटी ऑफ द प्लूरलिटी अगेंस्ट द आइडिया ऑफ वननेस। अगर आप फैसिज्म को हराना चाहते हैं, इफ यू वांट टू डिफीट द फैसिज्म, देयर मस्ट बी ए मिनिमम अंडरस्टैंडिंग अबाउट द यूनाइटेड फ्रंट। और यूनाइटेड फ्रंट बनाने के लिए ये डिस्कोर्स तो लोगों के बीच में गया है। यस, प्रोसेस हमारा स्लो है क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, नया यूट्यूब चैनल तो बनाए नहीं है, लेकिन लोगों के बीच में ये बात पहुंच रही है। आई एम टोटली एग्री विथ योर पॉइंट कि अगले साल जब हम वोट करने के लिए जाएंगे तो फिर क्या करेंगे। ऑब्वियसली फिर से जो है ये जितने अपोजिशन के लोग हैं ये आपस में लड़ना शुरू कर देंगे। वी हैव वेरी गुड एग्जांपल ऑफ यूपी। अब जो है बाप बेटे में वहाँ लड़ाई शुरू हो गई है। तो ऐसे सिचुएशन में अपोजिशन का क्राइसिस है, इलेक्ट्रली अपोजिशन का क्राइसिस है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि स्टूडेंट फाइट नहीं करें। आई एम गिविंग यू जस्ट रिसेंट एग्जांपल। I think you are still, Kanhaiya, you're still talking within the ambit of the noise and babble that accompanies any parliamentary democracy. It's a noise and babble, and eventually it's a mask to promote capitalism, to take the what do you call it, the focus away from what capital is doing to the noise and babble of day-to-day politics. The issue here is, and as you yourself are saying, it's becoming increasingly difficult to think in terms of a revolutionary imagination, let alone bringing about a revolution, but the revolutionary imagination, or let's say a radical insurrectionary imagination, where you have the capacity and the imagination and the ideological belief and force to stand up against anything that is going wrong. This one finds that space has shrunk dramatically in the Indian context, probably the world over, but let's stick to India. So when we say, is India ripe for a revolution, I remember reading somewhere that even in 1942, one of our great writers and poets, Sarojini Naidu, said once during the Quit India movement, she said, I'm tired of the tolerance of my people. And you get that feeling again and again today, that I'm tired of this. When your entire societies are pushed to a brink. We are a society where over 70% of the population lives on less than $1 a day. How much more, push do you need to bring about a great transformation? But despite that, we are able to tolerate the situation. We are able to sit back in our comfort. Let's say, urban India really does not know what rural India lives like. And we make this, the university students, I seriously believe today are becoming very parasitical. They are parasiting on the system. And one generation of students will go away, 3 years, 4 years, you are in college, you go away. The next union that comes may not even take up the courses that you took. So that transient nature of student politics itself is problematic when we conceive radical revolutionary politics. So the onus then comes on parties. Now we don't have any more parties that are carrying or carriers or seeds of revolutionary imagination. So they've also got into the electoral process and parliamentary process. So then there are extra parliamentary groups, the Naxalites, the Maoists, well, they believe in violence of a particular kind. So where does the inspiration for the youth come from? What are you going to ultimately hold on to be able to sustain what you started, for example? Already, you're no longer the president of the union. Already one sees a downing of energies there. Where is Najib? What's happened to Najib? Are we able to do anything about it? Anybody who questions the university for having made Najib disappear is getting the stick now. The students' leaders, the professors in JNU, they're being attacked. And nobody else in the country is saying anything about it. Of course, there are voices, but these are so feeble, such feeble voices. My question is, as
a community of people who are committed to the idea of change and radical change and a kind of a change that affects everyone's day-to-day life. Where will we draw that new inspiration from? The fact that you stood up in the manner you stood up was a fantastic hope to people. That here is a potential for a new political leadership in this country. Pew, your colleagues, each one was amazing. Sehla and Omar and Anirban and wonderful voices. But I hear that even in JNU this is divided now with, what is that, BASPA and all that. There's a whole division happening. So this system is very good at dividing anything that stands up against it. So this, once again, that's the question I'm asking. What's going to be our energy and motivation and inspiration to stand up in a united collective? Sir, first of all, that ये तो मतलब ये तो है, yes, ये तो है कि ये सिस्टम बहुत पावरफुल है, ये किसी भी मूवमेंट को ब्रेक कर देता है, डिवाइड कर देता है, इससे हम मतलब सहमत हैं. बट व्हेन वी एनालाइज द थिंग साइंटिफिकली कि कोई अगर हमको पीटेगा, इफ समबडी विल बीट मी, आई विल क्राई, ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है. थोड़ा सा भी अगर हम डायलेक्टिकली सोचें तो क्या ये चलता रहेगा? क्या इसमें जो है कोई आवाज़ नहीं आएगी? और कब तक? हम जानते हैं कि नजीब को लेकर के पूरे देश में एक मूवमेंट इसलिए नहीं खड़ा किया गया क्योंकि नजीब जो है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से आता है और उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर के जो पूरा का पूरा एक फोबिया पूरी दुनिया में खड़ा किया गया है, जिसको हम लोग इस्लामोफोबिया बोलते हैं. तो उससे लग रहा है लोगों को कि चलो मुसलमान है, कोई बात नहीं है, वो मुसलमान है तो आप मत आइए, कभी आपका भी नंबर आएगा, आप हिंदू होंगे तब भी आपका नंबर आएगा. तो वो सिचुएशन जो है, वो सिचुएशन, इसीलिए मैं इस बात से सहमत नहीं था कि देश जो है रेवोल्यूशन के लिए पक चुका है. मैं नहीं समझता हूं कि पक चुका है. लेनिन सेड दैट डेमोक्रेसी इज एसेंशियल फॉर द सोशलिज्म. अब डेमोक्रेसी ही जब आप नहीं बचा पा रहे हैं तो आप रेवोल्यूशन कहाँ देख पा रहे हैं? लेकिन रेवोल्यूशनरी जो चेंजेज हो रहे हैं प्रोडक्शन सिस्टम में, जिसको मैं न्यू मीडिया के माध्यम से आपको बता रहा था कि अब कोई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं होती है, एक छोटे से कमरे में पूरे देश के लिए कार बनाई जा सकती है और एक मोबाइल और एक कंप्यूटर से पूरे देश के अंदर जो है एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन किया जा सकता है. इसीलिए मैंने वो एग्जांपल दिया मिलिट्री वाला कि एक आदमी वीडियो बना करके अपलोड कर दिया, 5 दिन तक प्राइम टाइम डिबेट जो है उसी के ऊपर चलता रहा. तो आज जो ये रेवोल्यूशनरी टूल हमारे हाथ में है, लैक क्या है? आइडियोलॉजिकल परसेप्शन का लैकिंग है. दूसरा जो पोजीशन है वो बहुत स्ट्रांग है, उसके पास पैरेलल इंस्टीट्यूशन है, स्कूल है, मीडिया हाउस है, ब्यूरोक्रेसी में लोग हैं, जुडिशियरी में भी लोग अपने वो इम्पोज कर रहे हैं, वो बहुत मजबूत हैं. लेकिन साइंटिफिकली आप देखिए कि क्यों हम अपने आप को क्रांति का ठेकेदार बनाना चाहते हैं, क्यों बनाना चाहते हैं? सरोजनी नायडू के इम्पेशेंट होने से क्या होता है? लेकिन अब जनता इम्पेशेंट हो गई तो आज़ादी आई ना 1947 में. यही जो हाईली टॉलरेंट जनता थी यही सड़क पे उतर गई ना, यही संघर्ष करने लगी ना. तो वो सिचुएशन जो है, और पूरी दुनिया में देख लीजिए जो कैपिटल अपने आप को रीस्ट्रक्चर कर रहा है कि इंडस्ट्रियल कैपिटल जो है, जो प्रोडक्टिव कैपिटल है, उसको कहीं ना कहीं एक जबरदस्त फाइट जो है फाइनेंशियल कैपिटल से मिल रहा है. और ये फाइनेंशियल कैपिटल जिसको आप एक्चुअली वी आर नॉट पैरासाइट, दिस सिस्टम इज पैरासाइट. ये जो पूरा का पूरा फाइनेंशियल कैपिटल है, देखिए वो कितना पैरासाइट होता है. आप ऐसे वैसे कर करके जो है 10 मकान बना लीजिए और आराम से बैठ करके जो है रेंट खाते रहिए. ये सिस्टम आपको पैरासाइट बनाता है. हम तो एज ए स्टूडेंट जो सब्सिडी है और जो टैक्स है उस पर पढ़ करके वापस जनता को गिव बैक करना चाहते हैं, हम कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं. हम पीएचडी कर लिए, आप बताइए बाहर जॉब कहाँ है? मोदी जी अपना ही पीए रख लीजिए, बेरोजगारी की ये हालत है, आप मुझे बताइए कि जॉब है कहाँ? पहली बात तो यह है कि लोग पीएचडी करना नहीं चाहते हैं, लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, लोग वही पढ़ना चाहते हैं जिससे नौकरी मिलेगी. मतलब जॉब इज इंपॉर्टेंट, डिग्री इज इंपॉर्टेंट, एजुकेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट. ये सिचुएशन है हमारे यहाँ. उसके बाद देखिए कि जब इतना डिवाइडिंग हो रहा है, लेकिन मैं बार बार जो आपको ले जा रहा हूँ, अभी एक यंग जर्नलिस्ट को IIMC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, पत्रकारिता का सबसे रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूशन, फेसबुक पोस्ट लिखने के चलते
उसको सस्पेंड कर दिया गया। तो हर एक यूनिवर्सिटी में सस्पेंशन हो रहा है। आप जादवपुर में देखिए सस्पेंशन हुआ इन कोलकाता, आप देखिए कि इलाहाबाद में सस्पेंशन हुआ, जेएनयू में सस्पेंशन हुआ है, हर एक जगह, कर्नाटका में सस्पेंशन हुआ, पुणे में सस्पेंशन हुआ, एवरीवेयर दे आर सस्पेंडिंग स्टूडेंट्स बिकॉज स्टूडेंट इज क्राइंग, स्टूडेंट क्राइंग फॉर देयर बेसिक डेमोक्रेटिक राइट, दैट्स व्हाई दे आर ट्राइंग टू इम्पोज एंटी डेमोक्रेटिक थिंग्स ऑन द ये जो संस्कृताइजेशन के नाम पे ब्राह्मणाइजेशन के को जो आजकल सेफ्रोनाइजेशन के द्वारा इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है, दे आर ट्राइंग टू इम्पोज ब्राह्मणाइजेशन थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेफ्रोनाइजेशन। और सेफ्रोनाइजेशन को क्या किया गया है, संस्कृति के नाम पे, हमारे पहचान के नाम पे, ये हमको इम्पोज करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसके खिलाफ लोगों ने बोलना शुरू किया है। हम तो चिंतित ये थे कि लोग बोल क्यों नहीं रहे हैं, कम से कम लोगों ने बोलना शुरू किया है और उसमें ये हुआ है। आप देख लीजिए, आप ट्रेंड देख लीजिए निकाल करके, मोदी जी के पास जो फॉलोवर हैं वो लाखों करोड़ों में हैं और उनके जब आप वॉल पे जाकर के चेक करेंगे तो आज से 1 साल पहले उनके खिलाफ कोई कुछ नहीं लिखता था और उनके जो ट्रोलर थे वो ट्रोलर जो है दूसरे ऑथर को घूस घूस करके उनके वॉल पे और कमेंट बॉक्स में जाकर के गालियां देते थे और गालियां देने के लिए उनको 3000, 5000, 3000, 5000 दे ऑल आर पेड पीपल, उनको उन्होंने जो है बनाया। लेकिन आज सिचुएशन क्या हुआ है, they have paid trollers and we have free fighters, ठीक है ना। लोग अपना अपना मोबाइल लेकर के दे आर फाइटिंग एंड नाउ ये जो आइडियोलॉजिकल वॉर और परसेप्शन है, यस आई एम एग्री विथ योर पॉइंट कि ये बहुत जो है बहुत बड़ा नहीं है और इससे पता नहीं क्या होगा, लेकिन हम ये कहते हैं कि ठहरे हुए पानी में पत्थर तो मारा गया है, हलचल तो हुई है, इंतजार कीजिए हमारा जो जनरेशन है एंड वी आर प्राउड ऑन देम कि उनको कोई भी जो है ना बड़गला नहीं सकता है। इसीलिए किसी राजमाता का बेटा, आई एम टेलिंग यू द स्पेसिफिक नेम, राजमाता का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहा है, इसीलिए चाय वाला का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बन गया है। इसीलिए when धोनी जो है वो 6 मारता है तो हर एक मिडिल क्लास को लगता है कि मेरा बेटा भी धोनी बन सकता है। ये जो इंस्पिरेशन है, उस इंस्पिरेशन को ही कल्टीवेट करके वो इस देश में सत्ता में आए हैं। उसी इंस्पिरेशन को अगर वो अटैक करेंगे तो मैं बता रहा हूं आपको, वही यूथ, वही स्टूडेंट लाइन लगा करके अभी सड़क पे उतर रहे हैं, कल को पॉलिटिकल पार्टी बना करके उनको हरा भी सकते हैं, उनको सत्ता से नीचे भी उतार सकते हैं। बहुत बढ़िया आपका, your optimism is infectious, but I think it's also borders a bit on populism, so we need to be able to separate the two a little bit. And I think we have had a really charged, I won't say session, I think Kanhaiya has been entirely charged. And I think the audience has got charged. So we have a few minutes left for questions from the audience. Yeah. Okay. My name is Aditya Narayan. Hi. So I have a few questions which are bundled in one. One question. Not No, it's bundled in one. So what I feel is that there is an identity crisis today at play, which many people are not noticing. There's an undercurrent of identity crisis. So we don't know what to support. That's my point here. So I found that there's a danger of appropriating people who support Modi, me being one of them, from being called bhakts or saffrons, or I mean, I am neither a bhakt, neither a saffron, neither anybody, but I support some change. So isn't there a danger of what you're trying to prevent from happening, that is appropriating the diversity? Isn't there a danger of that happening with the same Modi which you are talking against? And to quote Thomas Babington Macaulay, who was the famous Britisher behind Macaulayism, he said that there is a liquidation of indigenous culture, that is Indian culture, which is necessary. So coming to the point of revolution, isn't that an evolution of devolution which India is going through in your terms? I didn't get your question actually. What you have said. नहीं, एक मिनट, जो आप क्रांति मानते हैं
वो अराजकता मान भी सकते हैं ना? An anarchism, in the words of Joker, he said, no, introduce an anarchy. No. in the There is a confusion, I am telling you. First of all, I am not revolutionary and I don't demand any revolution. I am unemployed and I want employ. I face discrimination, so I want equality. I can see, I can observe injustice in the society, so I want justice. I never said for the revolution. I always try to endorse the preamble of this constitution. We the people of India. If we the people of India and we are unemployed, we are uneducated, we are facing discrimination in the name of religion, in the name of having something, in the name of wearing something, in the name of to marry someone, this is the discrimination. If we want to establish a good best nation, we have to follow the idea of equality. And if demanding equality is revolution, yes, we need revolution and I am revolutionary. हेलो कन्हैया, हेलो मैं सवाल कर रहा हूं आपसे। पहली बात यह है कि मैं किसी सियासी जमात का रुकन नहीं हूं, तो एक गैर जानिबदार शख्स होने के नाते मेरा यह आपसे सवाल है। हम लोग सब, आपको मालूम है, सामीन के रिएक्शन से आपको मालूम है कि जो आप जद्दोजहद कर रहे हैं, पूरी हिमायत हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे दिल में एक गैर जानिबदार शख्स होने के नाते हमारे दिल में कुछ खौफ है, कुछ शुबा है। और आप जिस तहरीक और जिस नज़रिए से हमदर्दी रखते हैं, दूसरे ममालिक, और 3 मिसालें देता हूं, चाइना, नॉर्थ कोरिया और साबिक सोवियत यूनियन। आप जमहूरियत की बात कर रहे हैं, इंडिया अभी भी एक जमहूरी मुल्क है। Please make the question short. जमहूरी We don't मुल्क have time at all. है। आप जो जिस तहरीक से हमदर्दी रखते हैं, तारीख गवाह है कि जब भी आप लोग इक़्तिदार में आते हैं, जब तख्त पर बैठे हैं तो जमहूरियत बाकी नहीं रहती है। तो वो खौफ हमारे दिलों से कैसे निकालेंगे आप? This is very classical question कि if you are saying Lal Salam, it means you are a communist, and being communist, you cannot support democracy. This is very common perception. First of all, for me, if I say Lal Salam, it means I am supporting the idea of revolution. And the great revolutionary Bhagat Singh, he said Inqalab Jindabad. And Inqalab is translation of revolution in Urdu. So what Bhagat Singh is saying, Inqalab Jindabad, that is the same what when I am saying Lal Salam. One thing. And second thing, with Lal Salam I always say Jai Bhim. When we say Jai Bhim is the idea of Baba Saheb Bhimrao Ambedkar. And he is the main architect of democracy in this country. So how can you say that I am anti-democratic? If you are giving some examples about North Korea or China or Russia, this is a very basic thing. Lenin said, democracy is indispensable to socialism. जब लेनिन के आइडिया पे ही जो कंट्री नहीं चला, उस कंट्री में कौन सी क्रांति आई, ये बात मुझे आप बता दीजिए। जो कंट्री माओ के आइडिया पे ही नहीं चला, माओ क्या बोले थे कि कैपिटलिज्म का विरोध करो, चाइना आज सबसे बड़ा न्यू लिबरलिज्म का सपोर्टर है, तो वो कंट्री में कौन सा रेवोल्यूशन हुआ है। और नॉर्थ कोरिया में जो हो रहा है, देखिए एक बात समझिए, नाम रख लेने से कोई क्रांतिकारी तो नहीं हो जाता है। अब नाम हम रख लें कम्युनिस्ट पार्टी और तलवार लेकर के लोगों की जाकर के गर्दन उतार दें, तो हम कैसे कम्युनिस्ट हैं। सबसे पहली बात जो है, जब ये आइडिया, एक आइडिया जो होता है, जब आइडिया सोसाइटी के अंदर फ्लोट करता है, तो उस आइडिया के जो विरोधी लोग होते हैं, वो उस आइडिया को डिलेजिटिमेट करना शुरू करते हैं। देखिए मैं कोई आइडिया नहीं हूं, मैं एक इंसान हूं, मुझे किस तरीके से डिलेजिटिमेट किया जाता है। 3000 इसकी मां कमाती है, तो हवाई जहाज का पैसा इसको कौन देता है? हु इज पेइंग फॉर द फेयर ऑफ एरोप्लेन, ये मेरे बारे में कहा जाता है। तुम्हारे चाचा देते हैं। कौन देता है? भाई सरकार से लड़ ही रहे थे फेलोशिप के लिए, हमारा फेलोशिप बंद कर दिया गया। अपने फेलोशिप के पैसा से ट्रेन का टिकट कटाते हैं, और आपके पैसे से जो है यहाँ पे लिटरेचर फेस्टिवल अटेंड करने के लिए आए हैं। लेकिन ये बोला क्यों जाता है? ये किसी भी आइडिया को डिलेजिटिमेट करने के लिए बोला जाता है।
मार्क्सिज्म जब आया दुनिया के अंदर, आज भी हम लोगों को एकेडमिक्स के अंदर मार्क्सवाद पढ़ना पड़ता है. एंड फॉर द रिसर्च मेथोडोलॉजी there are only two kind of method, one is Marxist and another is anti Marxist. और आज भी जो वो मार्क्सवाद है जिसको कहते हैं ना, वो पूरे के पूरे एकेडमिया को आज भी हॉन्ट कर रहा है. और जब रिसेशन आया था, उस रिसेशन के दौरान दोबारा से कैपिटल की बिक्री बढ़ गई थी, बेस्ट सेलिंग किताब होने लगा था दुनिया के अंदर. तो वो जो एक आइडिया था, उस आइडिया को बदनाम किया गया. और सही कहा सर ने, उस वक्त तो फेसबुक था नहीं कि एनडीटीवी के बैन के खिलाफ हम लोग पोस्ट लिखना शुरू कर देते. उस समय तो नॉलेज जो है उसको और ज़्यादा हेजोमोनाइज करके रखा गया था, इन्फॉर्मेशन को और ज़्यादा हेजोमोनाइज किया गया था. तो जो आइडिया है, उस आइडिया को लोगों तक पहुंचने नहीं दिया गया, उसकी बदनामी लोगों तक पहुंचा दी गई है. अब आप मुझे बताइए, इस देश का कितना हिंदू है जो कुरान पढ़ करके इस्लाम को समझता है? कितना आदमी है? इस देश का कितना आदमी है जो महात्मा गांधी का हिंद स्वराज पढ़ करके गांधीवाद को पढ़ समझता है? इस देश में कितना आदमी है जो चे गुवेरा का तस्वीर लगा लेता है अपनी टी शर्ट पे और अपनी टोपी पे, और वो चे गुवेरा को जानता हो कि चे गुवेरा कौन है? तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम किसी भी आइडियोलॉजी को बिना जाने ही उसके बारे में उसके ज्ञानी बन जाते हैं. अब क्या कहा जाएगा कि 35 साल में आपने बंगाल में क्या कर लिया? भाई 35 साल में बंगाल में हमने कुछ नहीं किया, लेकिन 35 साल में हमने जो बंगाल में किया वो तुम जो है उत्तर प्रदेश में करके दिखा दो. तुम लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कर दो उत्तर प्रदेश में, फिर हम समझ में आ जाएगा. फिर बिहार में तुम लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कर दो. प्रॉब्लम देखिए क्या है, किसी भी आइडियोलॉजी को इतना ज्यादा डिलेजिटिमेट कर दिया जाता है कि करेक्ट इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचता ही नहीं है. और कोई भी इंसान, पहली बात तो ये दावा नहीं कर सकता है कि वो कम्युनिस्ट है, क्योंकि कम्युनिस्ट, बिल्कुल मेरे भाई साहब सही कह रहे थे, कम्युनिस्ट होने का मतलब है कि आप आइडिया ऑफ एवोल्यूशन में बिलीव करते हैं. और एवोल्यूशन तो रोज होता है ना, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हम कम्युनिस्ट बन गए हैं? अगर आप किसी भी चीज को ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेज में देखते हैं, डायलेक्टिकली देखते हैं, तो 5 मिनट पहले जो आप थे, 5 मिनट बाद वो नहीं है. अच्छा, तो कोई भी इस अब तरीके का अब आइडियोलॉजिकल स्टेग्नेशन तो नहीं कर सकता है. दिस इज द लास्ट सबमिशन. आइडियोलॉजिकल स्टेग्नेशन तो नहीं कर सकता है. इसका मतलब ये है कि किसी का भी ये दावा करना कि मैं कम्युनिस्ट हूं, सबसे गैर कम्युनिस्ट स्टेटमेंट है. और कोई भी इंसान जो ह्यूमैनिटेरियन नहीं हो, डेमोक्रेटिक नहीं हो, वो कम्युनिस्ट तो कतई नहीं हो सकता है. और ये जो कम्युनिस्ट पार्टी के नाम पे हंगामा दुनिया में हुआ है, अंतिम बात बोल करके अपनी बात खत्म करूंगा. हिटलर की पार्टी का नाम भी सोशलिस्ट पार्टी था. Sorry. It's a complete wrap up. You have overshot by several minutes. It's your fault. You asked questions but made him speak for 10 minutes. So I'll just end by saying, first of all, a great thanks to Kanaya, but also all of us need to remember what the wonderful Marxist scholar E.P. Thompson said, that revolution is ultimately a ritual political behavior from below. And this will continue to happen from below, this ritual of political behavior that seeks change, that seeks transformation, that seeks a completely new society will continue to happen, but it needs triggers. And here is one trigger sitting here. And thank you very much, Kanai. Thank you. सवाल पूछते रहिए, जवाब मिले ना मिले, आपके समय में जवाब आए ना आए, अगले जनरेशन को जवाब बहुत मिलेगा. बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया.